اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظام امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 سے آپ اس وقت پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج سے ہماری گفتگو مہدویت کے عنوان سے ہوگی، یعنی گفتگو کا سلسلہ ہمارا پہلے سے بھی مہدویت کے عنوان سے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایام خاصہ کی وجہ سے موضوع ہمارا ایام اعزاء اور زیارت اور ان موضوعات پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ العزیز آج سے خود مہدویت کے بحوث میں، چونکہ ظاہر ہے مہدویت میں بہت سارے بحثیں ہیں، خود مہدویت ایک بحث ہے، ذات خود ایک بحث ہے، اور پھر مہدویت میں ظاہر ہے غیبت کبریٰ کا دور، غیبت صغریٰ کا دور، اور ولادت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ ایک بحث، اور اس کے علاوہ خود علامات غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کے بعد علامات ظہور ایک بحث، اور خود تشرفات جو غیبت کبریٰ کے دور میں مولا کی لوگوں کو زیارت ہوئی، یہ خود ایک بحث ہے، اور اس کے علاوہ خود غیبت صغریٰ میں نواب اربعہ جس کو سفیران اربعہ بھی کہتے ہیں، یہ خود ایک بحث ہے، اور اس کے علاوہ خود وہ وقائع اور حوادث جو امام کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گے، یہ خود ایک بحث ہے، اور اس کے علاوہ خود ظہور خود ایک بحث ہے، حکومت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ خود ایک بحث ہے، اور بعد از شہادت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الی القیامہ یہ خود ایک بحث ہے۔ ان بحوث میں سے ایک بحث جو انشاءاللہ ان ایام میں ہم ان پر گفتگو کریں گے، بحث رجعت، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کل سے انشاءاللہ علماء کرام بھی تشریف لائیں گے، اور اس موضوع پر احادیث، روایات، عقل اور نقل ہر اعتبار سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس بحث کو واضح کر سکیں۔ آج میں مقدمتاً اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لوں، مقدمتاً یعنی زیادہ اس کی گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا، آیات اور روایات جو کہ موجود ہے یقیناً، لیکن میں فقط اس کی ہے کہ عقیدہ رجعت کی کیا اہمیت ہے، اس پر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں مخصوصاً اردو معاشرے میں کہ جو ممکن ہے رجعت سے واقف ہی نہیں ہے کہ رجعت کیا چیز ہے۔ خدمت میں عرض کروں کہ خود اگر معنی کے اعتبار پر ہم غور کریں، ہر ایک لفظ کے ایک معنی لغوی معنی ہوتی ہے، یعنی لغوی معنی اس کا رہتا ہے، اور ایک معنی جو ہوتا ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ رجعت ذات خود مصدر ہے، زبان عربی میں مصدر ہے، اور اس کا معنی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ پلٹ جانا۔ رجع یرجعو سے رجعت جو کہ مصدر ہے، رجع کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹا، اور ظاہر مضارع میں وہ واپس پلٹتا ہے یا پلٹے گا، اور مصدر کا معنی ہے اس کا رجعت یعنی واپس پلٹنا۔ اب واپس پلٹنا یہ اس کا ہو گیا لغوی معنی، یعنی واپس پلٹنے کے معنی میں ہے۔ اصطلاحی اس کا کیا معنی ہے یہ ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ رجعت کا اصطلاحی معنی قبل از ظہور، یعنی خود ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں
जो अकीदा रजअत है, इसका माना यह है कि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की नुसरत के लिए वापस पलटा दिए जाएंगे, यानी दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, रस्तखेज़ किए जाएंगे, उनको दोबारा से ज़िंदा कर दिया जाएगा और अपनी कब्रों से उड़ जाएंगे। इसको कहते हैं रजअत, इसको कहते हैं रजअत। तो बस समझ में आई बात कि लुग़वी एतबार से वापस पलटाना, और लुग़त में लिखा है कि एक दफ़ा वापस पलटाना, इसमें रजअत इसको कहते हैं। और इस्तिलाही माना इसका ये है कि जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो जो लोग इमाम के ज़हूर से पहले दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया से जो रुखसत हो चुके हैं, अपने उन्होंने आलम बरज़ख में जा चुके हैं, आलम बरज़ख में जा चुके हैं, उन लोगों को दोबारा इस दुनिया में पलटाया जाएगा। ये मज़हब शिया का अकीदा है। मज़हब शिया का अकीदा है कि उनको दोबारा उन मुर्दों को जो दुनिया से जा चुके हैं उनको वापस पलटा दिया जाएगा, और ये बाकायदा इमाम की नुसरत फरमाएंगे। मुर्दे जब ज़ाहिर है मुर्दे नहीं रहेंगे, जब ज़िंदा हो जाएंगे यानी दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, तो उस वक्त ये लोग जो ज़ाहिरन अभी इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं वापस पलटा दिया जाएगा क़यामत से पहले। क़यामत से पहले यानी ज़हूर, ज़ाहिर है कि ज़हूर क़यामत से पहले हैं, तो क़यामत से पहले इन लोगों को वापस पलटा दिया जाएगा, जो जो लोग भी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या सारे के सारे जो फौत हो चुके हैं वो सारे के सारे पलटा दिए जाएंगे? तो जवाब आएगा नहीं, सिर्फ दो गिरोह को वापस पलटा दिया जाएगा। एक गिरोह है ख़ास मज़लूमीन और मखसूस शिया, मखसूस मोमिनीन, ऐसे लोग जो इमाम के इंतज़ार में जा चुके हैं या नाहक कत्ल हो चुके हैं, ये इस किस्म के लोग। तो बस ये नहीं है कि सब के सब मुर्दों को वापस पलटा दिया जाएगा, नहीं, गिरोह है ख़ास, जो ख़ास गिरोह है मोमिनीन का, उनको वापस पलटा दिया जाएगा। और एक गिरोह दूसरा जो फासिकीन है, मुशरिकीन है, जो जालिम रह चुके हैं, लोगों पर जुल्म करते रहे, इनको भी पलटा दिया जाएगा। बस ये दो गिरोह हो गए। गिरोह है मोमिनीन जो ख़ास मोमिनीन है, वैसे तो मोमिनीन ज़्यादा है, ख़ास मोमिनीन के एक गिरोह को, और ख़ास कुफ़ार, मुशरिकीन, जालिमीन, इस किस्म के लोगों को वापस पलटा दिया जाएगा। ये किस लिए पलटा दिया जाएगा, इसका एक फ़लसफ़ा मैं अर्ज़ करूँ, वैसे उलमा भी कल से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इसका एक फ़लसफ़ा ये है कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे जालिम बादशाह आए, उन्होंने जुल्म किए, फिर दुनिया से चले गए। बहुत सारे मज़लूमीन नाहक कत्ल हुए, नाहक कत्ल किए गए, ना कोई जुर्म है ना कोई ख़ता है, इनको कत्ल कर दिया गया। इसका एक फ़लसफ़ा ये है कि जो जालिम है उसको भी इसी दुनिया में, ज़ाहिर है कि रोज़ आखिरत तो उसके ऊपर अज़ाब है, लेकिन इस दुनिया में भी अदालत इलाही का नफूज़ हो जाए, अदालत इलाही का नफूज़ हो जाए, और ये लोग जो नाहक लोगों को कत्ल करते रहे अपने किफ़र किरदार तक पहुंच जाए, और वहाँ मज़लूम को भी इंसाफ मिल सके। एक फ़लसफ़ा इसका ये है, यानी जो बंदा जुल्म करके यहाँ से जा चुका है उसको वापस पलटा दिया जाएगा, और शरई हद उसके ऊपर जारी कर दिया जाएगा। इसमें से ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं शरई हद, यानी शरई हद किन लोगों पर जारी होता है? ज़नाकार के ऊपर, जो ज़ना करे उसके ऊपर शरई हद जारी होता है। चोरी करने वाला आदमी जो चोरी कर चुका है उसके ऊपर शरई हद जारी होता है। कातिल के ऊपर शरई हद जारी होता है, जो कत्ल करे उसके ऊपर भी शरई हद जारी होता है।
या झूठी शहादत दे। मसलन ये फ़िक़्ह के मसाइल है जहाँ पर हुदूद शरइया यहाँ पर जारी होते हैं। मसलन अगर कोई बंदा चोरी करे तो हुक्म है कि उसकी उंगलियों को, हाथ को काट देना नहीं, उंगलियों को काट देना, उनकी उंगलियों को काट दिया जाता है। ये एक है, सिर्फ इस उंगली को छोड़ के उंगली को काट दिया जाता है। फ़िक़्ह के अंदर ये मौजूद है, जो बंदा चोरी करे उसके हाथ काटना। हमारे मज़हब के अंदर ऐसे हैं, मुमकिन है बाज़ फ़िक़ों में हाथ को किसी और जगह से भी काटते होंगे, लेकिन यह है कि हमारे पास उंगलियां काटते हैं। फिर से चोरी करे, फिर उसके ऊपर दोबारा हद शरी। बहरहाल मैं उस फ़िक़्ही मसलों की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चोरियां की है ग़ैबत इमाम के दौर में, इमाम मासूम मौजूद नहीं है, इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं हुआ, ख़ुद ज़ालिम आदमी था, कोई इसको पकड़ ही नहीं सकता था। अब ये मुस्तहक़ के हद शरई है या नहीं है? यकीनन जवाब आएगा कि हाँ है। शख्स है, लोगों की नामूस की बेइज्जती कर चुका है, ज़ानी है, इसके ऊपर शरई हद जारी होगा, इसको भी पलटा दिया जाएगा। यानी इस किस्म के लोगों को मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस किस्म के लोगों को पलटा दिया जाएगा जिन्होंने जुल्म किए हैं, जिनके ऊपर हद शरई जारी होने चाहिए थे, नहीं हुए। इस किस्म के लोगों को खुद रजअत में पलटा दिया जाएगा। ज़ालिमीन को, मज़लूमीन भी इसी तरीके से, जो मज़लूमीन है वो भी इसी तरीके से पलटा दिए जाएंगे। तो यहाँ तक बात जो है वो बिल्कुल वाज़े हो गई कि रजअत का क्या माना है। अब यहाँ पर एक सवाल, मैं इस सवाल का भी जवाब दूँ कि रजअत किसका अकीदा है। आलम इस्लाम में हदीस के मुताबिक 73 फ़िरक़े हैं, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हदीस भी अगर कोई इल्म रिजाल जानने वाला है तो वो यकीनन इस हदीस को भी सही हो सनद हदीस नहीं मानते, लेकिन ये है कि बहरहाल चूँकि मुतवातिर बार बार ये इस्तेमाल हुआ है तो तवातुर के हद तक जा चुका है। तो चलो इस हदीस को हम ले भी लें कि 73 फ़िरक़े बड़े बड़े मुसलमानों में बनने हैं। ज़ात खुद अपने आप को मुसलमान कहते होंगे, वल्लाहुल आलम किस किस्म के मुसलमान हैं, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहते होंगे। इन 73 फ़िरक़ों में से एक फ़िरका जो कि शिया, मज़हब शिया खैरुल बरिया है, सिर्फ रजअत इनका अकीदा है, बाकी फ़िरक़ों का अकीदा नहीं है। अहले तसन्नुन मुतलकन इस चीज़ का इनकार करते हैं, मुतलकन इनकार करते हैं इसका। वो कहते हैं कि रजअत जो है वो इस किस्म, बल्कि वो जिस तरीके से हम ज़ुहूर के और महदवियत का अकीदा रखते हैं उसमें भी इख्तिलाफ़ है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपस में ये है कि किसी न किसी हद तक आपस में इश्तिराक भी मौजूद है, लेकिन बाज़ अकीदे जो है उसमें बिल्कुल मुखालिफत है। ख़ुद अकीदा रजअत बस आपके जहन में होना चाहिए शिया अकीदा है, यानी मुर्दों को वापस पलटाना इमाम के दौर में, ये शियों का अकीदा है। अहले तसन्नुन का इस अकीदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितनी भी अहले तसन्नुन के जिस फ़िक़्ह पर भी वो अमल करते हैं, हम्बली है और इमाम गज़ाली और अबू हनीफ़ा, अहनाफ, और ये चारों जो इनके आइम्मा अरबा है, इन चारों के जो भी फ़िक़्ह वाले हैं इसमें से कोई भी अकीदा रजअत को कबूल नहीं करता। इनके अकाबिरीन ने भी लिखा है कि अकीदा रजअत जो है ये नहीं है। और जो आयात कुरानी इंशाअल्लाह इन दिनों में आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि जिन आयात कुरानी में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जो तफसीर फरमाई है, उसमें जो है ख़ुद क़यामत और ज़हूर इसमें फ़र्क है। बाज़ आयात में मासूमीन ने सराहतन क़यामत की तफसीर की है कि इससे मुराद जो है वो क़यामत है, और बाज़ तफासीर में उन्होंने फरमाया कि नहीं, इससे मुराद जो है वो ज़हूर हज़रत क़ाइम अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। तो इस पर भी इंशाअल्लाह एक बहस होगी। अहादीस भी वारिद हुए हैं, अक़ली दलाइल भी है, नक़ली दलाइल भी है। तो बस ये हमारे जहन में होना चाहिए कि अक़ीदा रजअत फ़कत शिया अक़ीदा है। अब दूसरे मज़ाहिब में आप गौर फरमाएँ तो हमें कुछ मज़ाहिब में
کچھ ادیان میں اس کے کچھ آثار ملتے ہیں، عقیدہ رجعت کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ مثلا ہندوازم میں، ہندوازم وہاں پر ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وشنو کا 7واں اوتار جب واپس آ جائے گا تو جو لوگ مر چکے ہیں ان کو بھی پلٹا دیا جائے گا، ایک ٹوٹی پھوٹی شکل میں، بالکل اسی طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے پاس عقیدہ ہے، ان کے پاس بھی ایک شکل میں یہ عقیدہ کچھ کسی حد تک موجود ہے۔ باقی ادیان میں بھی ہے جس پر انشاءاللہ ایک جلسے میں انشاءاللہ گفتگو کر لیں گے کہ کن کن ادیان میں رجعت کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ زیادہ مہم نہیں ہے، لیکن حسب معلومات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے ادیان دنیا میں موجود ہے جو رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہاں پر یہ عقیدہ فقط مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، جو کہ قرآن اور روایات، اصل میں اختلاف جہاں پر ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کی تفسیر ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ قال امام صادق علیہ السلام، قال امام باقر علیہ السلام، وقال رضا، وقال کاظم علیہ السلام، یہ سب ہمارے پاس جو تفسیر ہے وہ یہاں سے ہے۔ قرآنی آیات کی تفسیر، بحث یہ ہے کہ بعض روایات قرآن کی آیات کی جس طریقے سے تفسیر ہوئی ہے تو ہمارے پاس اہل بیت کی تفسیر میں ان کی تفسیر رجعت کی تفسیر ہوئی۔ البتہ دوسرے عقلی دلائل بھی موجود ہے، جیسے حضرت عزیر کا واپس پلٹنا، یعنی حضرت عزیر جو کہ ان کا طولانی واقعہ ہے، ان کا واپس پلٹنا، اور اصحاب کہف کا، حضرت عزیر کا تقریباً 1000 سال گزر گئے تھے، یعنی 1000 سال کے بعد حضرت عزیر کا واپس پلٹنا، یہ رجعت کی دلیل ہے، قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ یا جا کے اصحاب کہف کا واپس پلٹنا 300 سال کے بعد، 300 سال کے بعد اصحاب کہف کا، جو کہ دقیانوس کے دور میں کچھ لوگ تھے جو مسیحی تھے، اور دقیانوس ظاہر ہے یہودی تھے، اور یہ بہت ظلم کر رہے تھے عیسائیوں کے اوپر، تو یہ لوگ جو ہے مذہب اور دین حقہ پر تھے، تو یہ کسی غار میں جا چکے تھے، اور وہاں غار میں 300 سال برس کا عرصہ اور 300 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر یہ واپس پلٹے۔ تو اس قسم کے اشارے خود موجود ہے قرآن مجید میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے کہ رجعت ہمارا عقیدہ ہے، اور رجعت فقط ہمارے دور میں نہیں بلکہ ہمارے دور سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکے ہیں، جو کہ امام انہی چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ مثلا اصحاب کہف کا پلٹنا یا حضرت عزیر نبی علیہ السلام کا پلٹنا، ان چیزوں کی طرف امام رضا علیہ السلام گویا اشارہ کر رہے تھے۔ دوسری بھی ہے قوم، جو فرعون کے دور میں قوم تھی جو واپس پلٹی تھی۔ بہرحال وہ سب کے سب ایک ایسی ہے جو قرآن میں ان کے اشارے موجود ہیں، یعنی خود رجعت قرآنی عقیدہ ہے۔ اب کوئی شخص اگر منکر ہے تو اس کا کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمارا یہاں پر کسی دین کے اوپر اٹیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس پر اشکال کرے گا اس کو جواب دیں گے۔ کسی کے اوپر اٹیک نہیں ہے، یہاں پر ہم اپنے عقیدے کو واضح کریں گے کہ رجعت کے بارے میں علماء شیعہ کا کیا عقیدہ ہے، اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے، جیسے خود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ جنہوں نے فرمایا کہ اپنے ایک صحابی سے امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اہل عراق رجعت کے منکر ہو گئے، تو صحابی نے کہا کہ ہاں رجعت کے منکر ہے، تو وہاں امام نے آیت وہ پڑھی تھی کہ لوگوں کو پلٹا دیا جائے گا افواجن کی شکل میں، یعنی فوج در فوج پلٹا دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ آیت ہے۔ البتہ رجعت کے لیے قرآن میں جو ہے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بعض آیات میں خود لفظ رجع یرجع یعنی رجعت اس مادے سے استعمال ہوا ہے، بعض جگہوں پر حشر یحشرو یعنی حشر کے اس عنوان سے ہوا ہے، اور بعض جگہوں پر
रद्द यरुद्दो के मादे पर मौजूद है, यानी इनके सब मानों की यही है कि मसलन आप यहशुरो का माना ले रहे हैं, यानी महशूर कर दिया जाएगा। रद्दा यरुद्दो यानी वापस पलटा दिया जाएगा। रजा का भी यही माना है, रद्द करना यानी वापस पलटा देना। रद्द जवाब जो अरबी में कहते हैं, यानी जवाब को वापस पलटा देना। कोई शख्स ने आपको बात की तो उसने कहा जवाब, जब आपने उसका दे दिया तो उसने कहा रद्द जवाब, यानी ये उसका जवाब का रद्द है। तो बाज़ कुरानी आयात में भी यही है कि रजअत के लिए लफ्ज़ हशरा यहशुरो से है, महशूर हो जाना। बाज़ आयात में रद्दा यरुद्दो के वज़न पर है, वापस पलटाना, और बाज़ जगहों पर रजा यरजिओ यानी रजअत इस उन्वान से है। तो बहरहाल इन सब के जो माने हैं वो एक है। असल चीज़ है अकीदा, कि हम किस चीज़ का अकीदा रख रहे हैं। ये वो मुहिम बहस है रजअत की कि जिस पर ज़रूरी है कि अकीदा रखा जाए। और मैं इस अकीदे की अहमियत में एक बात ये भी कहूँगा कि हमारे उलमाए किबार जैसे शेख हुर्र आमिली रहमहुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने फरमाया कि हमारे पास सहीह सनद 70 रिवायात ऐसे मौजूद है कि जिससे अंदाज़ा होता है कि रजअत मज़हब शिया का अकीदा है। अगर कोई शख्स रजअत के अकीदे का मुनकिर है तो वो खारिज अज़ दीन शिया है। शिया दीन से वो शख्स खारिज है, यानी वो शिया नहीं है, कोई दूसरा होगा कोई और फ़िरके में, लेकिन शिया मज़हब अगर कोई रजअत का कायल नहीं है, वो रजअत को नहीं मान रहा, तो ये शख्स मज़हब अहले बैत से खारिज है। खरजा दीन यानी दीन से खारिज है अगर कोई शख्स जो है वो रजअत का अकीदा न रखे। ये नज़रिया शेख हुर्र आमिली, जिन्होंने फरमाया हमारे पास 70 मुस्तनद रिवायात, मुअतबर रिवायात, सहीह सनद रिवायात मौजूद है कि जिससे साबित होता है कि मज़हब शिया के उन असासी एतकादात में से ज़रूरत दीन में से अगर उसका कोई मुनकिर हुआ, दीन में नहीं रहेगा, मज़हब शिया से खारिज होगा, उसमें से एक रजअत है। और दूसरे हमारे एतकादात की किताबों में जैसे ख़ुद मरहूम मजलिसी की किताबें हैं, या मरहूम मुफीद है, या शेख सद्दूक है, उनके तमाम बाकायदगी से रजअत के ऊपर बहसें हुई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले जलसात में इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। वक्त तकरीबन हमारा इंतहा पर है और हम सब के लिए दुआ करते हैं और अर्ज़ है कि इंशाअल्लाह अगले 40 को आप भी 40 की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए, और हम भी बैनुल हरमैन में यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।